Hello everyone. So today I'm going to explain you everything from the book, and you won't find any PDF or ebook on the internet. Okay, I have prepared it for you, and it really took a lot of time for me. So here the book which we'll use in the class is Sumita Arora's book, and this is the same PDF of Sumita Arora's book, and this is really a very good book. So we're just starting from here in the first chapter, and first chapter is about getting started with the Python that we have already covered. Okay, like the Python features, applications, pluses, minuses, advantages, and how to install Python, that we have already covered in chapter 1. So we'll start with chapter 2, that is Python fundamentals. In Python fundamentals, we'll discuss about the keywords, identify literals, operators, punctuators, and all. And then third chapter will discuss about data handling, like about the data types, and those data types will be discussed in detail in the next chapters, like string manipulation, then debugging programs, then list manipulation, tuples, dictionaries. Then we'll discuss about the sorting, like insertion sort, bubble sort, etc. Then states and transitions, computer system overview, and then data representation. That the data representation, computer system overview, you have already got in your smaller classes, in your junior classes, and that won't take a big time. Okay, and then boolean logics, then in program execution, and relational databases and SQL, about like databases. So everything will cover here, and we'll cover everything from this book only. So today I'll be starting with the chapter 2. Okay, Python fundamentals. So in Python fundamentals, first we'll be discussing about two things that I should explain in the last class, in the previous class, but I'm doing it today because I just forgot about that. So here we'll discuss about two things, that is interactive mode and script mode. So basically what is interactive mode and what is script mode. Okay, so पाइथन आइडियल जो है, जो हमने लास्ट टाइम पे इंस्टॉल किया था पाइथन. ओके, सो पाइथन में जब आप वर्क करेंगे, सो पाइथन आपको टू मोड्स प्रोवाइड करता है. एक होता है आपका इंटरैक्टिव मोड, दूसरा होता है आपका स्क्रिप्ट मोड. इंटरैक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही एक लाइन आपने डाली और इन द नेक्स्ट लाइन साइमल्टेनियसली आपको उसका आउटपुट भी देता जाएगा. यानी कि जब आपको लाइन बाय लाइन कोड चेक करना होता है, किसी कोड पे कोई एरर तो नहीं है, तो हम इंटरैक्टिव मोड का यूज़ करते हैं. लेकिन वहीं अगर आप चाहते हैं मैं पूरा कोड एक साथ पहले बना लूँ, फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट करूँ, ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड. तो आई शो यू हियर, एज यू कैन सी दिस एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंटरैक्टिव मोड में प्रॉम्प्ट आते हैं. जब आप इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे, इसका आइडियल खोलेंगे, सॉरी आप इसका पाइथन डाउनलोड कर लेंगे. सो आप जब इसका आइडियल खोलेंगे तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट, इस जो तीन एरोज आते हैं इनको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट. ओके, सो इस तरीके से प्रॉम्प्ट विंडो आएगा आपका, और इसमें आप जो भी कोई स्टेटमेंट डालेंगे, कोई एक्सप्रेशन डालेंगे, तो सडनली हाथों हाथ ये इसका क्या करेगा, इसका आउटपुट भी दे देगा. लाइक आपने डाला है 2+5, तो इसका आउटपुट भी आपको दे देगा यहाँ पे 7. और यही जब आप फाइल के साथ करते हैं किसी, ओके, यानी स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, 2+5 फिर प्रिंट करेंगे 2+5 को, एंड देन आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर आपका आउटपुट आएगा. तो वो होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड. ओके, आई विल शो यू हियर हाउ दीज टू लुक्स लाइक एंड हाउ विल वर्क विद दैम. ओके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. तो एज यू कैन सी हियर, अभी जस्ट हमने देखा था ये हमारा कौन सा मोड है, इंटरैक्टिव. अभी मैंने बताया था इंटरैक्टिव मोड में इस टाइप के आपको 3 प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे. ओके, तो ये जब 3 इस तरीके से आपको एरोज दिखे, दैट मीन्स हमारा इंटरैक्टिव मोड है. अब यहाँ पे सपोज आप लिखते हैं 2+5. अभी हमने देखा था, आप एंटर करेंगे तो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये 7. इन दोनों को इसने ऐड कर दिया. यही आप अगर किसी वेरिएबल की हेल्प से करना चाहते हैं a+b, तो a+b तो दो अल्फ़ाबेट से ऐड नहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं, a के अंदर 2 को डाल देते हैं. ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आ गया है, और b के अंदर अभी इसने कोई आउटपुट क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन किया नहीं, ना ऐड किया, ना सब्ट्रैक्ट किया, ना कुछ प्रिंट करवाया, हमने सिंपली 2 को a में डाला है. तो बैकएंड पे ये काम हो चुका है. आपकी मेमोरी के अंदर कोई ए टाइप का वेरिएबल बना है जिसके अंदर 2 स्टोर हो गया है. ओके, ये वेरिएबल्स वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जस्ट आपको समझने के लिए 2 को हमने ए के अंदर डाला है, तो कोई मेमोरी में जाके स्टोर हो गया है, ए के अंदर 2 है. ओके, ऐसे हम बी के अंदर 3 डाल देते हैं. अब मैं ऑपरेशन कर रही हूँ a+b, तो a+b मेमोरी में इसने ए को क्या डाल रखा है, 2, और बी को क्या डाल रखा है, 3. तो आप a+b करेंगे तो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 5. 2+3 मीन्स 5. तो इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन आप इसमें चेक कर सकते हैं. जैसे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आपको हाथों हाथ आउटपुट मिल जाएगा. ओके, बट यही आप स्क्रिप्ट मोड में करेंगे तो क्या होगा, देखिए स्क्रिप्ट मोड के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली पाइथन शेल खोलना है
और आपको इस तरीके से एंटर करते जाना है, टाइप करते जाना है। स्किप मोड के लिए आपको सबसे पहले फाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा फाइल है। ओके, फाइल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू फाइल। ओके, सो हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं। फाइन, अब देखिए इस तरीके से आपका एक न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल होती है उस टाइप से एक न्यू फाइल क्रिएट हो गया है। अब आपको इसको क्या करना है, इसमें आपका जो प्रोग्राम है वो टाइप करना है। आप पहले लिखेंगे ए इक्वल्स टू 2, ए में 2 को डालना है, फिर बी इक्वल्स टू 3, बी को 3 में 3 को बी में डालना है, फिर मुझे करना है ए प्लस बी। ओके, अब मैंने यहाँ को एंटर करूँगी तो देखो मुझे कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इसको पूरा सेव करके फिर यानी फाइल पूरी बना के फिर हम जब एग्जीक्यूट करते हैं उस यही होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। हाथों हाथ हमको आउटपुट्स नहीं देता, ये हमारे सिंपल एक टेक्स्ट फाइल की तरह काम कर रहा है, और वो हमारा पाइथन का शेल था, यानी पाइथन के अंदर हम डायरेक्ट काम कर रहे थे। सो ए प्लस बी को सपोज मैं डालती हूँ सी में। ओके, और अब हमको क्या करना है, मुझे दोनों का एडिशन जो है उसको प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसको, सी को, क्योंकि एडिशन जो है किसके अंदर है, सी के अंदर है। अगर अब आप सी के अंदर नहीं डालते तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता ए प्लस बी, है ना। एक ही बात है, आप चाहे किसी वेरिएबल के अंदर डाल के फिर उसको प्रिंट कराओ, या डायरेक्टली आप प्रिंट में ही उसको लिख दो, दोनों बातें सेम है। ओके, अब आपका ये जो प्रोग्राम है तैयार हो गया है, लेकिन ये रन कुछ नहीं होगा। आप एंटर एंटर करोगे तो नीचे जाएगा, जैसे हमारा वर्ड फाइल में जाता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। ओके, और सेव जब आप करेंगे, सपोज मैंने लिखा है फाइल का नाम पी, और सब सेव करने के लिए लिखते हैं हम डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ इसको क्या करते हैं, सेव, यानी पाइथन की फाइल बनाई है हमने इसको। तो पी जो भी नाम आप रख रहे हैं डॉट पी वाई, एंड देन आपको क्या करना है, सेव। मैं इसको डेस्कटॉप पे कर रही हूँ ताकि हमारे के लिए इजी रहे ढूंढने में, और हमने कर दिया इसको सेव। अब मेरा पी डॉट पी वाई से ये फाइल देखिए यहाँ पे सेव हो गई है। अब मुझे इसको करना है रन, तो यहाँ पे ऊपर ही आपके पास भी ऑप्शन आएंगे रन का, यहाँ पर आप रन मॉड्यूल पे जाएंगे, है ना, और रन करिए इस प्रोग्राम को। देखिए आपका आउटपुट क्या आया है यहाँ पे, 5। ओके, सो हमने यहाँ बेसिकली क्या किया, पहले एक पूरी फाइल बनाई, उसमें पूरा कोड लिखा, फिर उस फाइल में जाके उस फाइल को सेव किया विद एक्सटेंशन डॉट पी वाई, एंड देन उसको रन किया। तो ये हमारा होता है, हमने पूरी स्क्रिप्ट बना के काम किया, तो स्क्रिप्ट मोड। ओके, और हम यहाँ पे डायरेक्टली साथ के साथ सारा काम करते हैं, जैसे 1+7 या किसी के अंदर असाइनमेंट या कुछ भी, तो ये हमको हाथों हाथ आउटपुट देता जाता है। सो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी मेहनत क्यों करें जब हम यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट आ रहा है। तो ओके, सो जब आपका कोड छोटा है या ऐसा कोड है जिसमें आपको हर लाइन पे आपको टेंशन है कि एरर हो सकता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, इंटरैक्टिव मोड यूज़ करना जाता है, कि आपको लाइन के बाद ही अगर आपने यहाँ पर सपोज लिखते हैं 6 प्लस और एंटर कर दिया, तो देखिए आपको हाथों हाथ एरर दे देगा कि इनवैलिड सिंटेक्स, यहाँ पे एक और नंबर चाहिए इसको ऐड करने के लिए। ओके, तो जब आपको लाइन बाय लाइन हाथों हाथ एरर चेक करना है तो आप इंटरैक्टिव मोड का यूज़ करेंगे। और जब आपको ऐसा नहीं, आपको पूरा प्रोग्राम एक साथ लिख के फिर फाइनली आपको देखना है कहाँ कहाँ एरर हो सकती है, क्या आपको पता है कि एरर फ्री कोड है 3-4 जगह होगी, हम देख लेंगे। ओके, तो जब कोड बहुत ज़्यादा बड़ा है प्लस एरर के चांसेस कम है, तो हम किसको यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट मोड को यूज़ करेंगे। ओके, तो स्क्रिप्ट मोड को हम पूरा लिखेंगे, तो अगर वहाँ पे आप 6+ भी लिखते हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6+ लिख के फाइल को पूरा सेव करा था डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ, फिर आप जब उसको रन करते ना तब वो आपको एरर ला के देता। ओके, तो यही बेसिकली डिफरेंस है इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों का मीनिंग। ओके, और कोई प्रॉब्लम है देन यू आर फील फ्री टू आस्क। ओके, नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस तो वर्किंग इन पाइथन इन इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड हमने डिस्कस किया। तो देखिए स्क्रिप्ट मोड तो आप समझ में आ ही गया, इसके सॉरी इंटरैक्टिव मोड तो आपको समझ में आ ही गया। स्क्रिप्ट मोड भी मैंने आपको वहाँ पे साथ के साथ समझा दिया। सेम स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इंटरैक्टिव मोड में करने के लिए आपको स्टार्ट बटन में जाके और प्रोग्राम्स पे जाके अपने पाइथन को खोलना है। जैसे हम सारे प्रोग्राम्स को खोलते हैं, वर्ड फाइल को, पैंट फाइल को, तो सेम तरीके से आपको स्टार्ट बटन में जाके और प्रोग्राम्स में जाके पाइथन 3.6 के अंदर जो आपने इंस्टॉल किया था उसके आईडीएल लिखा होगा, इसमें जब आप एंटर करेंगे फोल्डर में उसको जाके डबल क्लिक करना है। आपका पाइथन की इस तरीके से कमांड लाइन खुल के आ जाएगी, जैसे मेरी आई थी अभी। ओके, तो उस कमांड लाइन में ये देखिए इस टाइप से जो मेरी आई थी। ओके, कमांड लाइन में 3 एरोज होंगे, यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है आप कर सकते हो। हाथों हाथ आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा। और यही अगर आप स्क्रिप्ट मोड के साथ काम करते तो आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। वही स्टार्ट बटन पे जाके और प्रोग्राम्स में जाके पाइथन आईडीएल में जाके आप न्यू फाइल क्रिएट करिए। ओके, जैसा हमने किया था न्यू फाइल क्रिएट करी थी, तो बस आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी। तो स्टेप्स यहाँ सारे लिखे हुए हैं, अगर आपको नहीं पता चले कि मैम ने कहाँ से ओपन कर दिया, कैसे काम कर दिया, तो स्टेप्स यहाँ लिखे हुए आप देख सकते हैं। सो आप अपनी न्यू फाइल ओपन करेंगे, न्यू फाइल के अंदर आप अपना पूरा कोड टाइप करेंगे।
ओके, पूरा कोड लिखने के बाद आपको उसे सेव एज़ करना है। सेव करने के टाइम आपको ध्यान रखना है ये डॉट py एक्सटेंशन से सेव करना है इसको, जैसा हमने अभी किया था। उसके बाद आप इसे रन करेंगे, ओके, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये दोनों मोड्स आपको ध्यान रखना है। काम कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक वाइवा प्रैक्टिकल में इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपको पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर। इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम पाइथन कोड के अंदर यूज़ करेंगे, वो पढ़ने वाले हैं। और ये चीज़ें दिखने में बहुत ऐसे लगेगी कि क्या है, नॉर्मल चीज़ें, तो सिंपल सी चीज़ें, ऐसा है ना। बट ये चीज़ें आपका जब कोड आप फ्रेम करेंगे, बड़ा सा आप कोड फ्रेम करने जाएंगे, प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे, ओके, फैक्टोरियल का, फिबोनाची का, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इनका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको हर कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, ओके। सो पाइथन कैरेक्टर सेट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पाइथन जो है हमको किस किस टाइप की कैरेक्टर सेट्स अवेलेबल करवाता है। पाइथन कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, ओके। तो हमारी लैंग्वेज में हमारे लिए कैरेक्टर्स क्या होते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, तो इनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं सिंपल टर्म में, ओके। लेकिन पाइथन जो है ना, वो लेटर्स को, डिजिट्स को, स्पेशल सिंबल्स को, वाइट स्पेसेस को, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनको क्या कैरेक्टर अपने अंदर कैरेक्टर कंसिडर करता है। तो आपको जब क्वेश्चन आता है ना पाइथन के अंदर कि क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, तो पाइथन के अंदर जो आपका लेटर्स है ये इनको भी कैरेक्टर बोलता है, डिजिट्स है इनको भी कैरेक्टर बोलता है, ओके। अब लेटर्स सी कौन कौन से, लाइक A to Z कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, डिजिट्स 0 to 9 कुछ भी हो सकती है। स्पेशल सिंबल्स जो हैं, प्लस माइनस स्टार, ये सब भी इसके कैरेक्टर्स हैं, ये सब आपको यूज़ आएंगे प्रोग्राम बनाते टाइम, ओके। और इन सब का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, और सभी का मीनिंग पाइथन के अंदर स्टोर्ड है। वो मीनिंग हम समझेंगे कि कौन सा सिंबल क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। यहाँ पे जैसे आप स्टार देखते हैं, तो स्टार मतलब मल्टीप्लाई समझते हैं, तो पाइथन भी इसको मल्टीप्लाई समझता है। बट कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट भी है, जैसे डबल स्टार है, इसका क्या मीनिंग है, ओके। जैसे कि सेमी कॉलन, तो इसको पाइथन क्या समझता है, और मॉडुलस का मतलब पाइथन क्या समझता है। तो कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट भी है, वो सब हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। बट पाइथन के लिए ये सब क्या है, कैरेक्टर्स है जिनकी मीनिंग जो है पाइथन के अंदर स्टोर्ड है, ओके। देन वाइट स्पेसेस, जैसे आपकी एंटर करते हो, वाइट स्पेसेस बेसिकली वो चीज़ें होती है जो कुछ प्रिंट नहीं करती, ओके। लाइक आपने स्पेस दिया है तो आपको स्पेस मिल जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। एंटर किया तो नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, कुछ एंटर नहीं हुआ, टैप किया तो डबल लाइन एंटर हो जाएगा। जैसे वाइट स्पेसेस को भी एक कैरेक्टर मानता है, उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ओके। तो ये सब स्टडी करने वाले तो आपको ये ध्यान रखना है, कैरेक्टर सेट वैलिड कैरेक्टर सेट्स होते हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकती है, और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से कैरेक्टर सेट ये ले सकता है। फिर आते हैं आपके टोकन्स। तो टोकन्स बेसिकली क्या होता है, इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स, और लेक्सिकल यूनिट्स और लेक्सिकल एलिमेंट्स, ओके। जो इंडिविजुअल वर्ड्स है या कोई पंक्चुएशन मार्क्स है, उन्हीं को हम टोकन्स बोलते हैं। लेक्सिकल यूनिट्स और लेक्सिकल एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ओके। इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, लाइक देखो, इसके अंदर टोकन्स जो है ना, बेसिकली किसी भी टाइप का आप पाइथन में कोई वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, या कोई वर्ड आप पाइथन का खुद का कोई डिफाइंड किया हुआ वर्ड उठा रहे हैं, या पंक्चुएशन मार्क उसका कोई उठा रहे हैं, तो ये सारे बेसिकली क्या है, इन सभी चीज़ों को जो है ना, हम वेरिएबल्स वगैरह हो गए, इन सभी को हम बोलते हैं टोकन्स। जो भी हम स्मॉल स्मॉल चीज़ पाइथन कोड बनाने में यूज़ करते हैं, उन सबको बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टोकन। तो ये बोलते हैं जो इंडिविजुअल वर्ड्स है, जो पंक्चुएशन मार्क्स है, जो हम पाइथन टेक के अंदर यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम टोकन्स बोलते हैं। अब टोकन्स के टाइप देखिए, कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, पंक्चुएटर्स हो सकते हैं, ओके। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स जो है ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, एंड वो कभी नॉर्मल आइडेंटिफायर नहीं हो सकते, ओके। कीवर्ड का बहुत इजी मीनिंग है, जैसे देखिए कि आपका नाम है निशा, ओके। सो अब आपके नाम से अगर मैंने आपके कुछ काम, आपको टास्क डिफाइन कर दिया कि निशा अगर मैं बोलूँगी तो उसको रन करना है, भागना है, ओके। तो मैंने क्या किया, निशा नाम पे एक टास्क डिफाइन कर दिया कि निशा बोलते उसको भागना है। ऐसे ही कोई दूसरा नाम है पूजा, ओके। लेकिन मैंने उस पर कोई टास्क डिफाइन नहीं किया कि इसको करना क्या है। मेरी लैंग्वेज यानी मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो काम है, उसमें मैंने दो चीज़ें ली, निशा और पूजा। निशा को टास्क दिया है रन करने का, और पूजा का कुछ भी नहीं है, ओके। पूजा की मैंने डिफाइन ही नहीं करी कि पूजा नाम की कोई लड़की है और उसका कोई टास्क है। तो जैसे ही मैं निशा बोलूँगी, निशा को कॉल करूँगी, तो उसको पता है मेरा टास्क क्या है,
रन करने का है। लेकिन मैंने पूजा बोलूँगी तो कुछ नहीं करेगी, बिकॉज मैंने अपने अंदर पूजा को डिफाइन ही नहीं किया कि पूजा को करना क्या है। वैसे ही कीवर्ड्स है, ओके, कि पाइथन के अंदर कुछ चीज़ें जो होती है ना वो डिफाइंड होती है पाइथन के प्रोग्राम के। पाइथन अपने इंटरप्रेटर के अंदर उन चीज़ों को डिफाइन करके रखता है। तो जैसे आप उस नाम को डालते हैं ना, उसका मीनिंग वो ऑटोमेटिकली, उसका टास्क उसको पता है, वो अपना टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है। लेकिन कोई दूसरा ऐसा डाल देते हैं जो उसके अंदर डिफाइन नहीं है कोई वर्ड, तो वो क्या करेगा, या तो एरर दे देगा, या फिर उसके रूल्स, अब जो जो चीज़ कोई दूसरी जिसको हमने डिफाइन नहीं कर रखा है उसको हम कुछ और बोलते हैं, और उसको डिफाइन करने के कोई और तरीके होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो नाम डिफाइंड है और जिसका टास्क डिफाइंड है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम सॉरी पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। सो ये इस रिजर्व वर्ड होते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, है ना, यानी कोई फिक्स वर्ड्स है जो हमने डिफाइन कर रखे किसी स्पेशल टास्क के लिए, ऐसे समझ सकते हैं आप, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। और ये कीवर्ड्स लाइक फॉल्स, ये सारे एग्जाम्पल है। ये सारे जैसे आप पाइथन कोड के अंदर लिखते हैं एल्स, तो इसका मीनिंग डिफाइन, इसको पता है मुझे एल्स में क्या काम करना है। इन लिखते हैं तो उसको पता है मुझे इनमें क्या करना है। ब्रेक लिखते हैं तो बताइए उसको ब्रेक में क्या करना है। ये कोई आपके डिफाइन क्यों नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, ये सारे पाइथन के अंदर डिफाइन, इसलिए उनको बोलते हैं कीवर्ड्स। इन सारे कीवर्ड्स को हम जैसे जैसे आगे मूव ऑन करेंगे यूज़ करते हो जाएंगे, ओके, और आप समझ जाएंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है आपके आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम के। देखो आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो आप आइडेंटिफायर्स को सिंपल टर्म में बोले वेरिएबल्स, बहुत सिंपल टर्म में बोले वेरिएबल्स, यानी जो वैल्यूज़ वेरी कर रही है ना, तो वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस, ओके, यानी कि जो चीज़ें हम डिफाइन करें, जैसे मैंने एग्जांपल में भी निशा और पूजा का दिया था, निशा को डिफाइन किया तो वो क्या हो गई कीवर्ड, पूजा को कहीं डिफाइन नहीं किया तो वो कौन है, मेरा आइडेंटिफायर है। तो जो पाइथन के अंदर कहीं डिफाइंड नहीं है वो होते हैं आइडेंटिफायर्स, लेकिन उनको डिफाइन हम लोग खुद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स, ओके, यहाँ पे एक नया कीवर्ड, मेरे को नई चीज़ चाहिए, सपोज यहाँ पे मेरे को एक नया वर्ड चाहिए, ANC, ओके। सो यहाँ पे वो जो ANC मैं डालूंगी वो ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइन नहीं है, उसको मुझे पूरा डिफाइन खुद करना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या है, आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर आपके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज, यानी जो आप खुद डिफाइन करेंगे जो कहीं डिफाइन नहीं है, ओके, तो इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब जब आप डिफाइन करेंगे तो ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख लेंगे इनका, उनके लिए पाइथन ने कुछ रूल्स दिए कि आप खुद बना तो सकते हैं अपना प्रोग्राम, उसके अंदर उसका टास्क भी डिफाइन कर सकते हैं, कि है ना, स्पेसिफिक, बट उसके साथ कुछ रूल्स है उस वेरिएबल, फंक्शन, लिस्ट, या कह सकते हैं शॉर्ट में आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। तो रूल्स क्या क्या है, आइडेंटिफायर जो है एक आर्बिट्रेरी लॉन्ग सीक्वेंस होना चाहिए लेटर्स एंड डिजिट्स का, सॉरी ये तो है ही कि ऐसा होता है। सेकेंड है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर, ओके। आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है जब आप आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो वो हमेशा एक लेटर होना चाहिए, ओके। तो जो आपका आइडेंटिफायर का नाम है वो एक लेटर से स्टार्ट होगा सबसे फर्स्ट चीज़, और वो एक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पाइथन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कैरेक्टर्स के अंदर एक अंडरस्कोर जो है ये भी एक तरीके का कैरेक्टर माना जाता है, ओके। सो आपके जो पाइथन जो आपका आइडेंटिफायर का नाम है वो किसी कैरेक्टर से या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे पाइथन लैंग्वेज वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो अपर एंड लोअर केस लेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करता है। ऐसा नहीं ए आपने लिखा है कैपिटल लिखा तो वो स्मॉल और दोनों को एक ही कंसिडर करेगा, नहीं। सो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें अपर एंड लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट करता है। Next, the digits 0 through 9 can be part of the identifier except for the first character. ओके, और 0 to 9 आपका आइडेंटिफायर के अंदर आ सकते हैं, कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट रूल कि स्टार्टिंग जो है जीरो लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होती है। आप बीच में कहीं भी नंबर भी डाल सकते हैं, ओके। आइडेंटिफायर जो है अनलिमिटेड इन लेंथ, कितना भी बड़ा इसका नाम आप दे सकते हैं, लेकिन इन सब रूल्स का ध्यान रखना, स्टार्टिंग लेटर से करना है, ओके, लेकिन बड़ा आप कितना भी कर सकते हैं। आइडेंटिफायर मस्ट नोट बी ए कीवर्ड। अभी जो हमने कीवर्ड पढ़े थे ऊपर जिनका ऑलरेडी डिफाइंड है, इनमें से किसी नाम का आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। आप सपोज चाहे मैं एल्स के नाम से बनाऊँ, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एल्स ऑलरेडी पाइथन ने डिफाइन अपने हिसाब से कर रखा है, ओके। तो कीवर्ड का नाम आप आइडेंटिफायर को नहीं दे सकते हैं, और आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर,
और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता, इसमें सिर्फ आपके न्यूमेरिक वैल्यूज आती है 0 to 9, आपके कैरेक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते। स्पेशल कैरेक्टर हैश, एट द रेट, इस टाइप का कोई सिंबल नहीं आता, सिर्फ एक अंडरस्कोर आता है। वो बीच में भी आ सकता है और वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स। देखिए माई फाइल वैलिड है क्योंकि लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये भी वैलिड है बिकॉज इसके अंदर स्पेशल करेक्ट अंडरस्कोर है जो ये अलाउ कर रहा है, स्टार्टिंग इसका लेटर से हो रहा है। ये भी अलाउड है क्योंकि स्टार्टिंग हम अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। तो ये सारे वैलिड कैरेक्टर्स के सॉरी आइडेंटिफायर्स के नाम है। अब जैसे कि आप ये वाला देखेंगे डेटा डैश REC, तो ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर को अलाउ किया जाता है, उसके अलावा नहीं। तो ये डैश आई है इसलिए ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्टिंग इसने कहाँ से कर ली 2 से, लेकिन करना कहाँ से चाहिए था, ओनली अल्फ़ाबेट से। ये भी गलत है बिकॉज ब्रेक जो है एक रिजर्व कीवर्ड है, अभी हमने ऊपर देखा था। ओके, ये भी गलत है बिकॉज यहाँ पे आपका डॉट आ गया है और डॉट भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ पे अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था। ओके, सो ये इनवैलिड है। तो आपको समझ में आई क्या होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं एंड आपके कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफायर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लिटरल से स्टार्ट करेंगे और लिटरल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम ये चैप्टर पूरा कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, thank you so much. Stay happy, stay healthy, and stay home.